Hello everyone. So in today video we will discuss the chemical kinetics chapter. So this video was based on the NCERT coverage. तो इसमें देखेंगे हम क्या क्या टॉपिक्स हैं, जैसे कि इसमें आता है हमको ऑर्डर फाइंड करना रिएक्शन की। उससे पहले आता है हमारा रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट को डिराइव करना और एवरेज रेट को डिराइव करना। तो एवरेज रेट को हम जो डिनोट करते हैं वो हम डिनोट करते हैं बेसिकली डी ऑफ कंसनट्रेशन विद द डी ऑफ टाइम, यानी कि चेंज इन कंसनट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जो कि हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव्स में जो सेकंड है फिर हम उसमें ड्राइव करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन में। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं हम किसी भी रिएक्शन का। यदि हमको रेट लिखना है तो हमको उससे पहले उस रिएक्शन का रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मालूम होना चाहिए। थर्ड पॉइंट बेस्ड है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो आपको ध्यान रखना है कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है। एलिमेंट्री रिएक्शन हमारी वो रिएक्शन होती हैं जो कि हमारी सिंगल स्टेप के अंदर कंप्लीट होती हैं, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आर दोज रिएक्शन विच विल बी कंप्लीटेड इन मल्टीपल स्टेप्स। ठीक है, टू कन्वर्ट दैम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इनटू एलिमेंट्री रिएक्शन वी नीड टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। हाउ वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? वी विल चेंज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय कन्वर्टिंग, like if we take an example of the second order reaction, so we need to perform changes in second order reaction to convert them into the first order reaction. First order reaction referred to as the elementary reaction, so the second order reaction will be called as the pseudo first order reaction. That's the main principle of converting complex reaction into the elementary reaction. Now the fourth point is based on that the how will you find the differentiate between the molecularity and order of the reaction. So order of the reaction, we will find the order of the reaction with the help of the rate law, or we write as the rate constant. तो rate constant क्या होता है? rate constant होता है हमारा k। तो यहाँ पे हमको यदि molecularity लिखनी है, order लिखना है। अब if we are talking about the elementary of the reaction, so molecularity is equal to the order of the reaction for particular elementary reaction. But if we are discussing the complex reaction, where the example of the complex reaction is about the second order reaction, so in discussion of the second order reaction we do not take the molecularity is equal to the order of the reaction, because here the difference between the molecularity and the order of the reaction is about that we need to perform some changes, and these changes were based on the differential rate constant and the different rate of appearances, rate of disappearances, rate of reactions. Now the fifth point is based on the how you can define the rate constant. So we write the rate constant on the basis of the formula represented, which is represented by R, which is equal to the R is equal to K into concentration of A into the power n, where n is the order of the reaction, which it can be referred to as the zero order reaction, first order reaction and the second order reaction. Discuss the dependence of the rate of reaction on concentration, temperature and catalyst. These things were discussing in the Arrhenius equation. So Arrhenius equation, we write the dependence of the rate of concentration, temperature and catalyst. ठीक, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज बेस्ड ऑन द डिराइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सो वी नीड टू परफॉर्म द डेरिवेशन ऑफ द zero order reaction and first order reaction, and you need to remember while we deriving the concept of the zero order reaction or the first order reaction, we need to mention the half life, which is represented by the t half. ठीक, so you need to remember that for the particular zero order reaction and what are the units we can represent it as the rate constant. Rate constant I told you earlier, it is represented by K. In while if we are discussing about the unit of the K for the particular zero order reaction, it will be mentioned by the mole, liter inverse, second inverse, and for the first order reaction it is represented by the second inverse. Next point of discussion is based on the determine the rate constant for zero order reaction and the first order reaction. So rate constant is represented by the K, and they have various different entities used in the zero order reaction and the first order reaction. These entity can be determined on the basis of the unit of the rate constant.
Now the last point of discussion in the objective was the collision theory, and collision theory is based on the Arrhenius equation. In collision theory, you need to remember that we need to this theory is based on the concept of the how the moles of the reactant will responsible to form the product of the reaction. So first we take the moles of the reactant which will responsible for the mainly principle to form the product by the principle is based on the Arrhenius equation. In Arrhenius equation we describe the term as the threshold energy. So what is the threshold energy? Threshold energy is nothing but it is just the minimum energy required for the reactants to conversion into product. ठीक है, कितने मोल्स हमें रिएक्टेंट के रिक्वायरमेंट हो रहे होंगे प्रोडक्ट को कन्वर्ट करने के लिए, ये हमारी रिप्रेजेंट होती है एनर्जी बैरियर से, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी की कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे किसके अंदर। बेसिकली हम डिस्कस करेंगे ये हमारा जो लास्ट टॉपिक है जो कि बेस्ड है हमारा अरेनियस इक्वेशन पे। अब बात कर लेते हैं, तो ये एनसीईआरटी को शुरू करने से पहले आपको ध्यान रखना है, आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। केमिस्ट्री को आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले या तो आप कोई भी एक रेफ़र बुक ले सकते हैं या फिर आपके पास जो कोचिंग के मटेरियल्स हैं उसको आप ज़रूर रेफ़र कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या होता है कि एनसीईआरटी में जो हमारे टॉपिक्स गिवन होते हैं वो ऐसे दिए होते हैं, जैसे कि यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि डेल्टा जी इज़ लेस देन 0। तो ये आप कॉन्सेप्ट यदि पढ़ेंगे, आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो एक क्लास 11th के अंदर हमको गिवन है, और जैसे आप उसमें भी पढ़ते हैं तो ये यहाँ पे हमारा क्लास 11th के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर गिवन है कि डेल्टा जी इज़ लेस देन इक्वल टू 0 होता है, जो कि हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी से। ठीक है, तो इसलिए एक मेन ड्रॉबैक भी है हमारा डायरेक्टली एनसीईआरटी को पढ़ने का। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जो मेरे प्रीवियस लेक्चर है पहले आपको उनको देखना है, बाद में इस टॉपिक को समझना है विद द हेल्प ऑफ द एनसीईआरटी, तो फिर आपके लिए इजीली हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए। आपको डायरेक्टली जो है एनसीईआरटी पे जंप नहीं करना है। आप एनसीईआरटी का यूज़ डायरेक्टली तब कर सकते हो जब आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करनी हो, जैसे कि न्यूमेरिकल्स गिवन है इसके अंदर कि हमारे इंडेक्स क्वेश्चन हो गए और हमारे जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन हैं आप उनको रेफ़र कर सकते हो एनसीईआरटी यूज़ करने के लिए। लेकिन थ्योरी पढ़ने के लिए आपको जो है एनसीईआरटी यूज़ नहीं करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स की बात कर लेते हैं। केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है? केमिकल काइनेटिक्स होता है हमारा कि फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, हमारी क्या होती है, रिएक्शन कैसे कंप्लीशन हो रही होगी, उसका क्या फिजिबिलिटी का ग्राफ होगा, यानी कि कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हमारे प्रोडक्ट के अंदर फॉर्मेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहे होंगे, कैसे हमारी रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी, ये आती है हमारी केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें बताया गया है कि हम जो है केमिकल रिएक्शन के रेट को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन को रेट डिटरमाइन करने के लिए जैसे हमने यहाँ पे एक रिएक्शन ले रखी है R2P, जहाँ पे कि हमारा R हो जाएगा रिएक्टेंट और P हो जाएगा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन के अंदर हम सबसे पहले कुछ इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ले लेंगे जो कि कंज्यूम हो रहे होंगे प्रोडक्ट को फॉर्मेशन कराने के लिए, और ये हमारे मोल्स जो कंज्यूम होते हैं ये हमारे रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहे होते हैं। आप आगे चल के भी पढ़ेंगे डिस्कशन में कि जो हमारी पर्टिकुलर जैसे टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, केवल जैसे कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, तो इनमें क्या हम डिस्कस करते हैं, इनमें डिस्कशन करते हैं कि हमारे जो बेसिकली हाफ लाइफ होती है इनके रेस्पेक्टिव में, जैसे कि हमारी टी हाफ लाइफ है वो हमारी इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, ये आप आगे चल के पढ़ेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे यानी कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि जितने इनिशियल मोल्स हम लेते हैं और वो कंज्यूम हो जाते हैं हाफ टाइम पीरियड में, उतने जो है फिर फर्दर मोल्स हमारे यूज्ड होते हैं इन नेक्स्ट हाफ लाइफ। और जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो कि हमारी टाइप ऑफ केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आता है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर इसमें आता है कि हमारी जो बेसिकली हाफ लाइफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की वो इंडिपेंडेंट होती है कंसंट्रेशन से। ठीक है, तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करती है हमारी
रेट ऑफ अपीयरेंस पे और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पे। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो होगा वो हमारे रिएक्टेंट्स के मोल्स होंगे और रेट ऑफ अपीयरेंस जो होगा वो हमारे प्रोडक्ट के मोल्स होंगे। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो बेसिकली जैसे यहाँ पे दे भी रखा है कि फर्स्ट पॉइंट में क्या गिवन है, रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन इन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स, यानी कि जो कंसंट्रेशन के रेट हैं उसके अंदर डिक्रीज़ आ रहा होगा, और द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है उसके अंदर इंक्रीज़ आ रहा होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस से। ठीक है, तो प्रोडक्ट के अंदर हमारा बेसिकली फॉर्मेशन होता है और रिएक्टेंट्स के अंदर हमारा डिसअपीयरेंस होता है, यानी कि हमारे मोल्स यूज्ड होते हैं। मोल्स यूज्ड होंगे तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस से, जिसको हम कह रहे होंगे रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, दैट विल रेफर टू एज द टर्म ऑफ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस फॉर द रिएक्टेंट मोल्स दैट वर यूज्ड। एंड व्हाइल इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द concept of the rate of increase in concentration, rate of increase in concentration refers to as the product term which will responsible to the formation of the moles। तो फॉर्मेशन ऑफ मोल्स होंगे प्रोडक्ट के अंदर, तो वहाँ पे हमारा रेट ऑफ अपीयरेंस आ रहा होगा। तो जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारे का फॉर्मूला होता है, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन किस किस का होगा, कंसंट्रेशन हम डिस्कस करते हैं तो चेंज इन कंसंट्रेशन होगा हमारा रिएक्टेंट्स का और हमारा प्रोडक्ट का। तो चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा आर जो है ये हमारा रिएक्टेंट का है, यानी कि हमने रिप्रेजेंट कर दिया डेल्टा आर को कंसंट्रेशन ऑफ R2 माइनस R1 से, और हमने प्रोडक्ट के मोल्स जो हमारे रिएक्शन है इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया कंसंट्रेशन ऑफ P2 माइनस P1 से। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये जो हमने कंसंट्रेशन लिया है चेंज इन R या चेंज इन P जो लिया है, डेल्टा R या फिर डेल्टा P लिया है, ये हमने लिया है यदि हम जो है यहाँ पे दो कंसंट्रेशन इनिशियल सपोज कर रहे हैं। जैसे कि हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगा रिएक्टेंट का, वो हो जाएगा R1, और P का हमारा कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा। फिर एट पर्टिकुलर T टाइम पीरियड पे हमारे R1 के मोल्स कुछ यूज्ड होंगे, जिसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे चेंज इन R से, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि हमने इनिशियल मोल R के A ले लिए तो वो हमारे फाइनल T टाइम पीरियड पे A माइनस X बच रहे होंगे, उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे R2 से। और प्रोडक्ट के अंदर हमारे X मोल्स फॉर्म्ड हो रहे होंगे, जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया चेंज इन P2 से। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ P2 से। तो यहाँ पे हमने वही किया है, यहाँ पे हमने डेल्टा ले लिया है। अब यहाँ पे द स्क्वायर ब्रैकेट इन एक्सप्रेशन इज यूज्ड फॉर मोलर कंसंट्रेशन। जैसा मैंने आपको बता दिया, जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर के कंसंट्रेशन से। अब हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारा डिपेंड कर रहा होगा चेंज इन कंसंट्रेशन पे अपॉन टाइम टेकन पे। तो यदि हम टाइम टेकन की वैल्यू बढ़ा देते तो आप मुझे बताइएगा कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारा इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर हम सबसे पहले डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ R ले लेंगे, जिसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे माइनस से। अब माइनस हमने यहाँ पे साइन क्यों शो किया है, माइनस साइन हमने यहाँ पे इसलिए शो किया है क्योंकि रिएक्टेंट्स के मोल्स यहाँ पे हमारे यूज्ड हो रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट तो इसका ये है। नंबर 2 पॉइंट इसका क्या है माइनस साइन को शो करने का। सेकेंड पॉइंट हमारा इस बेस्ड पे है ताकि हमारी ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव आ रही हो, तो इसलिए हम बाहर जो है माइनस या फिर नेगेटिव साइन को मेंशन करा देते हैं टू कन्वर्ट दी रिएक्शन ओवरऑल पॉजिटिव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ R, यानी कि रिएक्टेंट्स के मोल यूज्ड होंगे तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस से। अब क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के मोल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस से। कोई भी चीज़ यदि हमारी फॉर्म्ड हो रही होगी तो उसको हम रेट ऑफ अपीयरेंस से मेंशन करेंगे, और इसको हम लिख सकते हैं इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ P डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। अब यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन लेंगे। पॉजिटिव साइन चाहे तो आप लगा सकते हो या फिर नहीं लगा सकते, क्योंकि पॉजिटिव साइन का मतलब ही यही होता है हमारा कि वो हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब यहाँ पे आप लगा भी सकते हो, नहीं लगा सकते, वो आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या फिर न्यूमेरिकल जब हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के अंदर जो इंडेक्स क्वेश्चन है वहाँ पे हम पॉजिटिव साइन को मेंशन नहीं करते हैं, हम पहले से ही सपोज करके चलते हैं कि हमारे जो है पॉजिटिव साइन हमने इनिशियली ले लिया है, वही हमारा फर्दर कंटिन्यू रहता है। ठीक है, तो इक्वेशन 3.1 जो है और 3.2, यानी कि 3.1 है हमारी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ R और 3.2 यानी कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द P, ये हो जाएगी हमारी एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ R।
ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट हाउ वी कैन राइट द एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन, बट इफ वी write the instantaneous rates, so we takes place changes, and these takes place changes were held that we take the delta। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंस्टेंटेनियस के अंदर जो है यहाँ पे रिएक्टेंट्स के मोल्स हो गए या फिर हमारे प्रोडक्ट के मोल्स फॉर्मेशन हो गए, उनको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमारा स्लोप गिवन है, देख लेना। स्लोप हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे कि हमारा आर एवरेज है। आर एवरेज क्या है यहाँ पे? हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, एवरेज रिएक्शन रेट है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है हमारा, जो कि हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन डिसअपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, चेंज इन डिसअपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट, सॉरी। और ये हो जाएगा हमारा माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा हमारा माइनस चेंज इन डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस के रेट को हम जो है माइनस डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम जो है एवरेज रेट को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब इसका स्लोप आप देख लेना। स्लोप जो है हमारा बेसिकली स्लोप निकल करके आ जाएगा। स्लोप कैसा आएगा हमारा? क्योंकि ये डाउनवर्ड नेचर का ग्राफ है, तो यदि हमारा डाउनवर्ड पैराबोलिक ग्राफ है तो इसका स्लोप भी हमारा नेगेटिव आ रहा होगा। ठीक है, while now we are discussing about the rate of the reaction, so how we can write the rate of reaction? It is based on the concept that for the particular reaction, if we take reactions of based on the zero order reaction, and if we are discussing of the reaction is based on the first order reaction, so the rate of reactions, or we can say that the rate law is dependent on their units। अब units को हम कैसे मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे? तो अभी आपको इनिशियली में ये ध्यान रखना है कि जो हमारी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है और रेट ऑफ अपीयरेंस है, उनकी जो हमारी रेट है वो हमारी डिपेंडेंट करती है कंसंट्रेशन पे और टाइम पे। तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो यूनिट ऑफ रेट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स। बट इफ़ वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल इन दैट कंसंट्रेशन इज टेक्स प्लेस इन द मोल लीटर इनवर्स, और टी को हमने सेकंड इनवर्स में ले लिया, तो हमारी यूनिट बननी होगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये जो आप पढ़ेंगे आगे चल के, जो हमारी यूनिट है रेट की, जो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। ठीक है, however in gaseous reaction, when the concentration of gases is expressed in terms of their partial pressure, then the units of the rate equation will be equal to atmospheric, ये हो जाएगा ATM सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन गिवन है, तो क्वेश्चन के अंदर आप देख लेना, ये हमारा बहुत इजी सा क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमारा गिवन है कि हमारा कंसंट्रेशन दिया है, कंसंट्रेशन दे रखा है ब्यूटाइल क्लोराइड का। ब्यूटाइल क्लोराइड होता है हमारा C4H9Cl, इसका कंसंट्रेशन गिवन है, और यहाँ पे हमारे रिएक्टेंट्स के मोल्स भी गिवन है, रेट ऑफ, और हमारे बेसिकली टाइम भी गिवन है कि डिफरेंट टाइम्स पे हमारे कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, ये हमको गिवन है। हमको फाइंड क्या करना है यहाँ पे? हमको फाइंड करना है कि कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। तो एवरेज रेट कैसे लिखते हैं? एवरेज रेट लिखते हैं हम चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम से। अब चेंज इन कंसंट्रेशन हम रिएक्टेंट्स के मोल के लिए रिप्रेजेंट कर देते हैं R2 माइनस R1 से, और प्रोडक्ट के लिए यूज कर देते हैं P2 माइनस P1 से। वही हमने किया है, जैसे कि यहाँ पे R एवरेज लिखा है, R एवरेज हो जाएगा माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। माइनस साइन हमने इसलिए रिप्रेजेंट किया क्योंकि हमको शो कर रहा है कि रिएक्टेंट्स के मोल कंज्यूम्ड हो रहे हैं। प्रोडक्ट के लिए हमने डेल्टा P बाय डेल्टा T लिख दिया। ठीक है, और यदि हम डेल्टा टी को 0 पे ले जाएं तो यहाँ पे हमारा आर इंस्टेंटेनियस बनना होगा, यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फॉर्म्ड हो रही होगी। और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट के अंदर जो है हम स्लोप नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि स्लोप नेगेटिव लेते हैं तो यहाँ पे हमारा माइनस डी आर बाई डी टी से हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, रिएक्टेंट्स के मोल यूज हो रहे हैं तो इसलिए नेगेटिव साइन हमारे रिएक्टेंट में मेंशन है। प्रोडक्ट के मोल्स हमारे फॉर्मेशन होते हैं तो इसलिए हमारा पॉजिटिव साइन डी पी बाई डी टी के अंदर मेंशन है। अब ये हमारा ग्राफ है। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है? एवरेज रेट। तो एवरेज रेट फाइंड आउट करने के लिए हम लिख देंगे कि हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे देख लेंगे क्या क्या हमारे फॉर्म्ड हो रहेंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पे रिएक्शन के अंदर
यहाँ पर डिस्कस किया गया है। यदि हम ले लेते हैं इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में, तो इंस्टेंटेनियस रेट को लेने से पहले आपको मैंने बताया था कि माइनस डी आर ऑफ बाई डी टी से मेंशन करते हैं, यानी रिएक्टेंट्स के मोल्स के अंदर चेंज ले लेंगे। अब रिएक्टेंट्स के मोल फाइनल कितने हैं और इनिशियल कितने हैं, इनके बीच में चेंज ले लेंगे। यदि फाइनल हमको गिवन है 0.0165 और इनिशियल मोल्स गिवन है हमारे 0.037, अब फिर हम जो है टाइम का डिफरेंस ले लेंगे। टाइम का डिफरेंस ले लेंगे T2 माइनस T1 से। टाइम का डिफरेंस हमको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वेरियस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुए हैं ब्यूटाइल क्लोराइड के, तो उनका टाइम पीरियड भी हमको डिफरेंस है। अब हमने जो है फाइनली टाइम पीरियड्स निकाल करके जो है हमने पर्टिकुलर 600 सेकंड के लिए जो है आर इंस्टेंटेनियस फाइंड आउट कर लिया। अब ये तो था रिगार्डिंग हमने जो आर इंस्टेंटेनियस फाइंड आउट किया है 600 सेकंड के लिए। ऐसी जो है हम फर्दर सेकंड्स टाइम पीरियड में जो है आर इंस्टेंटेनियस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, सो दिस इज रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट विच इज़ बेस्ड ऑन द इंडेक्स क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो है हमारे बेसिकली वेरियस रिएक्शंस भी गिवन है, जिसके अंदर हमको बताया गया है कि जैसे हमने एक रिएक्शन सपोज कर ली 2HI गिव्स दी H2 प्लस I2, तो अब को हमें बताना है कि हम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे। तो बहुत आसान है रेट ऑफ रिएक्शन लिखना। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप अब तक समझ भी गए होंगे। रेट ऑफ रिएक्शन हम लिख सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम से। चेंज इन कंसंट्रेशन को हम लिखते हैं रिएक्टेंट्स के मोल कितने यूज हुए, प्रोडक्ट्स के मोल्स हमारे कितने फॉर्मेशन हुए, दोनों के बीच का डिफरेंस, फिर डेल्टा टी लेते हैं। डेल्टा टी के अंदर जो हम टाइम डिफरेंस ले रहे होते हैं, तो इस यही हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कितना है यहाँ पे हमारा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो जाएगा हमारा HI क्योंकि हमारा रिएक्टेंट्स है, तो रिएक्टेंट्स के मोल हमारे यूज्ड हो रहे होंगे। रिएक्टेंट्स के मोल कंज्यूम होते हैं, तो इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस से। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के अंदर नेगेटिव साइन हमेशा आएगा, ठीक है, क्योंकि मोल्स हमारे कंज्यूम्ड हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा माइनस DHI बाई DT डिवाइड इंटू -1/2। अब ये जो -1/2 है ये हमने पहले डिस्कस नहीं किया था, अब डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हमारा -1/2 है ये है हमारा स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो रिएक्शन के रिगार्डिंग जो हमारा स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे हम डिवाइडेड कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, तो हमारा फाइनली इक्वेशन बन जाता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ दी HI का। अब हमको लिखना है रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस होगा H2 का, यानी कि हमारा प्रोडक्ट्स के मोल फॉर्मेशन हो रहे होंगे। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हमें स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर देंगे डेल्टा H2 बाई डेल्टा T, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा फर्दर हमारे I2 के मोल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे डेल्टा I2 बाई डेल्टा T से। सिमिलरली हमने एक और रिएक्शन कंसिडर्ड की है जो कि हमारी दे रही है 5Br प्लस BrO3 6H प्लस, जो कि एक्वस मीडियम में है। ये हमारी 3Br2 प्लस 3H2O फॉर्म कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस रिएक्शन के अंदर, जैसे कि हमारी रिएक्शन हो गई और हमारी पहली रिएक्शन थी 2HI और यहाँ पे हमारी Br है, तो ये जितनी भी रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, ये सारी की सारी इक्वेशंस हमारी या फिर रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिएक्शन को बैलेंसिंग करने की ज़रूरत नीड नहीं है बिल्कुल भी। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर आपको जो है डायरेक्टली रेट ऑफ रिएक्शन लिखते आना चाहिए या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखते हुए आना चाहिए, ठीक है। तो इसका हम लास्ट और डिस्कस कर लेते हैं इस रिएक्शन के रिगार्डिंग हमारा रेट कैसे लिखेंगे। तो रेट हमारा डिपेंड करेगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पे और रेट ऑफ अपीयरेंस पे। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो गए हमारे रिएक्टेंट्स के मोल, रेट ऑफ अपीयरेंस होंगे हमारे यूज्ड प्रोडक्ट्स के मोल। प्रोडक्ट्स के अंदर फॉर्मेशन होगा तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे। रिएक्टेंट्स के अंदर हमारे मोल्स की कंज्यूम होंगे, दैट्स वाई वी टेक इन एज दी नेगेटिव साइंस फॉर राइटिंग द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस फॉर द रिएक्शन, ठीक है। Here we write the rate of reaction. So how we can write the rate of reaction? We write the rate of reaction. First we take the delta Br by delta T. Now we have to write the divided by the stoichiometric coefficient. So stoichiometric coefficient से divide करने के बाद जो है हमारा finally -1/5 आ जाएगा। We take as the negative sign because the moles of the reactant were being used in it, ठीक है।
if we are required, we need to mention the for particular concentration BrO3 minus, so we do not need to write the stoichiometric coefficient because the stoichiometric coefficient for the BrO3 is 1, so we need to not mention about that. For H plus aqueous medium, we need to represent it by the -1/6 because 6 is the stoichiometric coefficient. for particular Br2 aqueous medium रिएक्शन के लिए तो रेट ऑफ, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, we don't take the negative sign, we take the positive sign because in product there is a formation of the reactants will takes place. So we write the Br2. अब Br2 के लिए हम स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 1/3 बन जाएगा, एंड जो हमारा H2O है उसके अंदर भी हमारा 1/3 बनना होगा क्योंकि यहाँ पे हमारी इक्वेशन कैसी है, बैलेंस्ड इक्वेशन यूज्ड हुई है। ठीक है, तो बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर हमारे 3 मोल्स ऑफ वाटर के यूज्ड हुए हैं, तो यहाँ पे हमारी 1/3 डेल्टा H2 बाय डेल्टा T से मेंशन कर देंगे। तो ये थी हमारी रेट, हम कैसे लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका जो फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 3.2, जो कि हमारा बेसिकली जिसके अंदर हमको फाइंड करना है कि हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ द आवर्स, मिनट और सेकंड। ठीक है, तो आवर्स के लिए, तो मिनट्स के लिए, सेकंड के लिए, तो उसमें आपको ध्यान रखना है हम बेसिकली 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। अब जो है और हम देख लेते हैं ये रिएक्शन कैसी है 3.2 के अंदर। तो यहाँ पे अभी जो है ये रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं 2N2O5 हमारी 4N2 + O2 है। तो यहाँ पे हमको बैलेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, बैलेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हम जो है नेक्स्ट की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप जो है इतना समझ सकते हैं, हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया रेट ऑफ रिएक्शन लिखना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखना, रेट ऑफ अपीयरेंस लिखना। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के लिए हम जो है रिएक्टेंट्स के मोल को कंज्यूम करते हैं, रिएक्टेंट्स के मोल्स हमारे कंज्यूम होंगे तो उसको हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखेंगे, और वहाँ पे हम जो है नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। नेगेटिव साइन हम इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हमारी ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारी पॉजिटिव नेचर की आ रही हो, दैट्स वाई वी टेक इन एज द नेगेटिव साइन। बट इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन राइटिंग इन टर्म of the rate of appearance, while we are writing the rate of appearance we need to mention that the product's moles are being formed. That's why if the product's moles are being formed we write the stoichiometric coefficient by taking as the positive sign. So that's all about this video. In next video we will discuss the next index question which is based on the 3.2. Till then keep learning.